جان ایم جے ٹی وی۔ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف عام شہری بھی شکایت کر سکتے ہیں، اور یہ شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتی ہے۔ آج ایم جے ٹی وی کے اس پروگرام میں ایک ایسی ہی عام شہری میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر پیونی جج ہیں، ان کے خلاف ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی تھی، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں گزشتہ اپنی کارروائی کے دوران یہ طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ مزید شواہد دیے جائیں اپنی اس شکایت کے حوالے سے جو انہوں نے آمنہ ملک نے دائر کی تھی جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف۔ اور آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس سپریم کورٹ کی عمارت میں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس کی اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور کچھ دیر پہلے ہی آمنہ ملک جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہو کے اپنا موقف بیان کر کے ابھی باہر آئی ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹے کی اس تمام کارروائی کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ جی آمنہ، پہلے مختصر سے اپنا تعارف کرا دیں، آپ کا مکمل نام کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے؟ میں آمنہ ملک ہوں، میرا پورا نام آمنہ میر عبداللہ ہے۔ میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، اور جس طرح ہم اپنے وطن کی خاطر بہت سے اچھے کام جو ہے وہ کرتے آئے ہیں، لائک کہ پٹیشنر رہ چکی ہوں میں، اور اسی طرح مطلب کہ لیکن زندگی کا حصہ ہے کہ جتنا بھی کام کیا ہے 25 سال سے ہم نے ہیومن رائٹس کے لیے کیا ہے۔ کون سی آرگنائزیشن ہے ہیومن جی رائٹس؟ یہ ہے سول سوسائٹی نیٹورک پاکستان۔ پاکستان، آپ کیا ہیں اس میں؟ میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں۔ اچھا، اور یہ کب بنی اور کون فنڈ کرتا ہے اس کو؟ اس کو کوئی فنڈ نہیں کرتا۔ اچھا، لوکل آرگنائزیشن جی ہے؟ بالکل لوکل آرگنائزیشن ہے۔ ٹرسٹ ہے مطلب جی کیسے؟ ٹرسٹ بھی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا میرا ادارہ ہے جس کا کوئی آفس ہونا کوئی بہت ضروری نہیں ہے، کام تو کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب ایسا کوئی آفس نہیں ہے، آپ نے یہ ادارہ کیسے کس قانون کے تحت کھولا؟ یہ کوئی اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی ہم نے کوئی آپ واحد ممبر ہیں اس کی اور خود ہی صدر ہیں اس کی؟ یہ تو سیم کوسچن ہے۔ نہیں، یہ سیم کوشچن سے کیا مراد ہے؟ یہ قانونی بیسک سوال ہے۔ اچھا، بٹ اینی وے کیا ہوا کیا؟ یہ انکمفرٹیبل سیم کوسچن۔ چلے پھر آگے چلتے ہیں، چھوڑ دیں۔ آپ نے شکایت کیا تھی؟ آپ اپنی شکایت پہ آ گئے۔ میری شکایت یہ تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، مجھے کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم عام شہریوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم بیوروکریٹس کے اوپر، ججز کے اوپر، وکلا ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یا ان کی غلطیاں جو ہے وہ لوکل عام لوگوں سے ہوتی ہیں، خاص لوگوں سے غلطی۔ لیکن آپ نے تو ہمت کی نا۔ میں نے ہمت کی، لیکن مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، الٹا میرے سے اتنے کوسچن۔ یہ جو تحریری درخواست دی تھی اس میں آپ نے ایک عام شہری کے طور پہ کی یا صدر سول سوسائٹی نیٹورک کے طور پہ؟ صدر کے طور پہ وہ دیکھیں عہدہ تو میں نے اپنے لیے خود ہی وہ چنا اور بنایا، مجھے کسی نے تو وہ عہدہ نہیں دیا۔ اچھا، خود ہی میں نے اس کو، اگر ایک ہماری آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے کہ جی سول سوسائٹی نیٹورک ہے، ہم اس کے تھرو بہت سے وہ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، جس طرح کہ جو بچیز ہیں۔ کتنے ممبر ہیں ویسے آپ؟ ویسے ہمارے تو بہت سے ممبر ہیں، لائک کہ ان میں ایڈوکیٹس ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، عام شہری ہیں۔ اس کا کوئی آپ نے ظاہری بات ہے لیٹر ہیڈ ہوگا، آپ کا لوگو ہوگا، اس میں آپ کی ماشاءاللہ ایک اسٹرگل ہے ہیومن رائٹس کے لیے۔ وہ تو ہے، سب کچھ ہی ہے، لیکن پھر وہی والے کوسچنز ہیں کہ میں نے اگر میں نے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو الٹا میری اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ یہاں بھی ہو رہی ہے، اندر بھی ہوئی ہے، نہیں میری کریں، دیکھیں انہوں نے جو پوچھا میں نے کھل کے بتایا ہے، آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ کیا شکایت کی؟ میں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے کچھ لائبلٹیز تھی 2 کروڑ 47 لاکھ روپے، اس کا ایک سوال پوچھا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر کوئی عام بندہ اٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے تو شاید میں ان کے لیے راستہ ہموار کر دوں، لیکن مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا۔ کیا لائبلٹی کیا تھی مطلب؟ وہ کچھ روپے تھے، کچھ پیسے تھے، جس کی لائبلٹی تھی طارق مسعود صاحب کے اوپر۔ اور مطلب کیا لائبلٹی؟ بینک کی تھی، کسی پرائیویٹ بندے کی؟ کون سے بینک کی؟ اب اتنی ڈیٹیلز تو میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ اچھا، یہ خفیہ بینک تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی خفیہ آپ تو سول رائٹس موومنٹ کی پریزیڈنٹ ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے بارے میں کچھ ثبوت بھی آپ نے پیش کیا؟ جی، جو انہوں نے مانگے تھے، آج نہیں پہلے سے ہی ہم ثبوت بھیج چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ پرسنل کوسچنز ایسے کیے تھے، یہ چیزیں کہاں سے ملی، کہاں سے نہیں ملی، تو ان کا آنسر تو میں بھی نہیں دے سکتی۔ وہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس سے آپ کے پاس سب کچھ دے دیے، لیکن میں نے ان کو بولا کہ مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں ایک لائر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھوں جو آپ کے ٹیکنیکل کوسچنز کا آنسر کرے، کیونکہ ٹیکنیکل کوسچنز کا میں اس طرح آنسر نہیں کر سکتی۔ لیکن وہی ہے کہ آپ بھی اگر کوسچن کر رہے ہیں تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، آگے نہیں پوچھ رہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے پوچھ رہے ہیں،
पीछे नहीं पूछ रहे कि मैंने ये उंगली उठाई क्यों है, मेरी जुर्रत कैसी हुई वो मेरी उंगली हाथ समेत काटें. बात ये है कि मुझे तो कहीं दूर दूर तक भी यहाँ तो इंसाफ ना होता ना नहीं तो चलता आपने है चीज़. मैं सवाल बहुत मायूस आम हूँ. लोग आपसे बड़े खुश हैं कि आपने एक वो ऐसा होंगे, सवाल मैं अपने उठाया आप है। से खुश नहीं हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ. अच्छा, मुझे फिर सेम हुआ क्या? क्वेश्चंस बाहर आके अच्छा, अंदर हुआ क्या? तारिक मसूद साहब भी मौजूद थे. हाँ, उनका वहाँ पे मौजूद होना, मेरा उनके सामने बैठना मेरे लिए एक परेशानी की बात थी. आई वाज अच्छा, कंफर्टेबल. अच्छा। अगर वो बैठे हैं, अगर वो ना होते तो क्वेश्चन होता नहीं वो तो एज अ रिस्पोंडेंट जज उन पे इल्ज़ाम लगा है तो वो ज़ात के लिए मौजूद नहीं होना तो चाहिए उन्होंने था। क्वेश्चन किया मुझसे अच्छा ठीक है। कि आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली, वो तो नहीं पूछ सकते. अच्छा और किस किस ने सवाल जवाब किए? जस्टिस साहब ने किए हाँ, और एक दो और लोग थे उन्होंने भी किए. हाँ, जैसे कल ईसा साहब ने भी किए सवाल। जी उन्होंने सब किए. अटॉर्नी जनरल मौजूद थे मेरा ख्याल है वो भी मौजूद थे. तो उन्होंने कोई मुदाखलत की या प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के हवाले से कोई अपनी राय दी कि कैसे होनी चाहिए? नहीं, attorney कोई general कोई साहब? राय नहीं. मुझसे बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस किए गए. क्या क्या सवाल किए गए थे? सारे बताऊँ? तो कुछ बता दें जरूरी नहीं है बस ये कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन देता है, आप हम्म, किस अदारे को चलाती हैं, आपके कोई बैंक अकाउंट्स, आप टैक्स पेयर हैं. मैंने कहा जी मेरे नाम कोई जायदाद ही नहीं है, मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं टैक्स पेयर के उसमें आऊँ, तो फिर मैं कैसे आपको बता दूँ. मैंने कहा सर जिस तरह मैंने अकाउंटेबिलिटी के लिए इनकी बोला है, आप भी मेरी अकाउंटेबिलिटी करें. कुछ निकलता है तो मैं हाजिर हूँ, मैं अपने आप को पेश करती हूँ. आप जैसे आप पता करना चाहते हैं आप कर लें. तो जो इल्ज़ामात आपने लगाए थे उन इल्ज़ामात के हवाले से जैसा सरदार तारिक मसूद ने कोई वजाहत दी अपनी? जी उन्होंने कहा है कि मैंने इस फाइल के अंदर अपने जो टैक्स के रिटर्न्स हैं वो लगाए हैं, लेकिन वो मैंने थोड़ी देर के लिए देखे लेकिन वो मुझे दिए नहीं गए. मैंने उनसे कहा था ये मैं फ़ाइल ले सकती हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है. उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिखाए. बाकी फ़ाइल तो मैंने पढ़ी हुई थी जो मेरा क्वेश्चन था, और उसके बाद जो वहाँ पर मुझसे बार बार यही पूछा गया. लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई है ह्यूमन बीइंग बताऊँ कि मुझे ऐसा लगा है कि जैसे वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और मेरी कैसी ज़रूरत होगी उनकी. क्यों आए आपको? उनके क्वेश्चंस, एरोगेंसी, जज और सब एरोगेंट तो होते हैं, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए एरोगेंस दिखाना चाहिए. आपको किसी को बहुत छोटा साबित करने के वाले आप तो कोई नहीं होते ना. बीबी कहाँ से उठ के आई, लेडी कहाँ से, मतलब कि मैं इतनी फियरलेस हूँ कि मैंने कहा आप जैसे भी छानबीन करना चाहते हैं आप कर लें. उनकी तो कर लें पहले भी मेरी कर लें. अच्छा इस सिविल सोसाइटी नेटवर्क के अलावा आपके कोई और नहीं, उन्होंने कहा आप क्या करती. मैं कहा जी मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है. तो सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? मेरा हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देता है. हाँ. क्या कहते हैं हस्बैंड? मेरे हस्बैंड वो है, इज अ लॉयर है. ओके क्या उन्होंने नाम कहा है? कि फिर उन्होंने आपको एक अब्दुल्ला मलिक. अच्छा माशाल्लाह गुड. सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, उधर लाहौर हाई कोर्ट के. वो भी कोई सोसाइटी चला रही है ना? हाँ, अब्दुल्ला मलिक भी कोई सोसाइटी वाले वो चला रहे हैं? सिविल सोसाइटी नेटवर्क का ही हिस्सा है. अच्छा वो भी है हाँ, इसमें? लेकिन इस केस में उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की है. अच्छा ये मैंने खुद कंपाइल किया सारा. अच्छा गुड. और बगैर लॉयर के आपने ये तभी सब- वो बार नहीं, हम थोड़ी बहुत मदद किया, बहुत सारी मदद हम ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब का किस सियासी जमात से कोई- नहीं, कोई उनका connection? उनका उनके बारे में क्वेश्चन नहीं कीजिए. नहीं, आप जजों के बारे में पूछ रहे हैं तो अपने बारे में नहीं, बताएंगे आप? मैंने उनको बताया बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे मेरी बात करें. क्या उनका तरीके इंसाफ से ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल. कोई किसके? गवर्नर खोसा के मशीन सरदार साहब के. सरदार लतीफ़ खोसा के मशीर रहे हैं? अच्छा गवर्नर हाउस में होते थे. अच्छा तो आप कहते हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की. जारी बात है आप एक पढ़ी लिखी, आपकी एजुकेशन भी माशाल्लाह ठीक ठाक जी होगी. मैं ग्रेजुएट हूँ. उन्होंने भी मेरा स्कूल पूछा, कॉलेज पूछा, यूनिवर्सिटी पूछी. जो नहीं पूछना चाहिए था आपके ख्याल में? चलिए, नहीं वैसे पूछना चाहिए था. कोई बात नहीं. उनको लगा कि मैं कोई अनपढ़ औरत तो नहीं उसके आगे. फिर मैंने बताया कि आप कहेंगे तो अगर मुझे टाइम देते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी डिग्रीज भी ले आऊँ. तो इन पे तय क्या हुआ? कुछ भी नहीं. उन्होंने कहा आप जा सकते हैं. अच्छा उसके बाद में कुछ देर बैठी, उन्होंने कहा ये ना आपका कार्ड, आप घर जाएँ. अब मैं घर जा रही हूँ. मुझे कुछ नहीं पता क्या फैसला हुआ है, डिसमिस हुआ है, रह गया है. आज आपने क्या कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? जी कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं. मैंने उनसे कहा था कि सब कुछ जो आपने मांगा हमने भिजवा दिया. इनका आंसर जो है वो सर को देना है. अच्छा क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए पहले? डॉक्यूमेंट्स यही थे कि अब मैंने ये भी नहीं पूछा कि मैंने इतना तफसीली इंटरव्यू आपको देने के लिए क्या करूँ. किससे पूछना था? अब्दुल्ला मलिक साहब से? नहीं, एक बात है, वैसे ही सोच रही हूँ. नहीं वैसे क्या डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराए आपने?
जो उन्होंने हमसे मांगे कि आपको ये चीज़ें कैसे पता चली, क्या था, तो हमने जब उन्होंने मांगी तो हमने लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो टेस्टेड है सारे confirmed कहा हैं। कि आपको कैसे लगता है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल तो आप मुतमैन नहीं हैं अपने जो जवाब दिए सरदार तारिक मसूद साहब ने जो अपनी वजाहत दी, आप उससे मुतमैन नहीं हैं, उन्होंने क्लियर नहीं किया? मैंने तो उनको एक रिटर्न दिया है सब कुछ, उन्होंने तो मुझे नहीं दिया रिटर्न कुछ। और अभी मुझे सिर्फ ये कहा गया कि आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं बताया गया कि उन्होंने मेरे मामले का क्या किया। जैसे मुजाहिर नफीस को तो आप नहीं जानते हो। क्यों नहीं जाना? अच्छा, मुजाहिर नकवी साहब के आगे भी बहुत सारे केसेस लगते हैं, उनका भी नाम सुना है, देखा है। पर्सनल मैं उनको नहीं जानती, मुजाहिर नकवी साहब का क्यों नहीं? आपके केसेस लगे उनके सामने? मेरे केसेस कौन से हैं? मुजाहिर नफीस साहब के सामने आपने मेरी क्या बहुत से मेरी केसेस तो पटिशन इस तरह की थी कि जैसे जैनब के मामले की थी, अल्ताफ हुसैन साहब की जो पटिशन थी वो भी मैं पटिशनर थी, अच्छा। तो उसमें से भी हम निकले। फिर हमने ऐसे, लेकिन मुजाहिर नकवी साहब का मैंने नाम भी सुना है, जो मामला चल रहा है वो भी है, लेकिन सब मुझे वो यही समझ रहे हैं कि उन्होंने ये बड़ी करवाया। गेम खेल रही है। जो समझता है समझ ले, तो मैं तो कोई गेम नहीं खेल रही। नहीं, आप तो एक आम शहरी मैं तो आम शहरी हूँ ना, तो मैं पिट रही हूँ ना कि मैं बस आम शहरी हूँ, बस यही बात है। बस मैं और इतना ही बताऊँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा सिर्फ आमना मैडम मलिक को आपने सुना? एक सवाल का जवाब दें। कुछ आप और एक सवाल। एज आ सिविल सोसाइटी के तौर पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट चल रही है, इसको आप कैसा देखती हैं? क्योंकि आप खुद अदलिया की अकाउंटेबिलिटी का आप कह बात में रही हैं कि सबकी मेरा नारा अकाउंटेबिलिटी है। होनी चाहिए ना। अब एक तरफ मैं करूँ, मैं उनकी पार्टी की हूँ, जो कहूँ जी इनकी ना करें। जिसकी जो कंप्लेंट हो रही है, अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए। और हमारे चीफ जस्टिस बार बार हज़ारों दफ़ा ये रिपीट करते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मुझसे स्टार्ट करें, मुझसे। तो मैंने तो एक जज साहब से स्टार्ट किया और मेरा ये हाल हुआ है। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करना नहीं देती। अकाउंटेबिलिटी मेरा कि मुझसे कुछ ना पूछें। नहीं, अभी मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप वहाँ तो नहीं थे, क्योंकि सेम क्वेश्चन कैसे ये सारे कोर्ट रिपोर्टर और जजेस कानून के हवाले से जब सवाल होते हैं वो वो सवाल ऐसे ही सेम होते होते हैं। हर कानून जो होता है ना, जिसको कानून का पता इतने है, रेप्लिका क्वेश्चन। आपको तो शायद कानून का आइडिया नहीं है क्योंकि आप वकील नहीं हैं, लेकिन अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं उनसे आप पूछिएगा कि वो बुनियादी सवाल है जो हर एक ने करने होते हैं। तो वैसे अब्दुल्ला मलिक साहब कैसे वकील? अब्दुल्ला मलिक की यही ठीक है। गुजारा करते हाँ, हैं आपके साथ ये वैसे वकालत आपको एक जज के टैक्स रिकॉर्ड तक कैसे रसाई हासिल हुई? एक आम शहरी के तौर पे वो तो मेरे टैक्स रिकॉर्ड तक भी किसी को रसाई नहीं हो सकती, मुझे आपके तक नहीं हो सकती, आपको कैसे होगी रसाई हासिल? वैसे जी, ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत सख्ती से, आप जैसी सख्ती से ही पूछा। तो फिर आपने क्या बताया? हाँ, जो मैंने उधर भी नहीं जहाँ बताया। मैंने जो बताया बस बता दिया। उधर भी नहीं बताया, इधर भी नहीं बताया। नहीं बताया, बता दिया उधर। अच्छा मालिक उधर बताया, मैडम मेरा तो फिर बड़ा कैसे होगी आपकी मैं एक क्लास में? आसान सा सर्टिफिकेट आपने दिया था? मे बी। अच्छा, और वैसे ये अटेस्टेड कॉपीज थी ना सारी? जी, टेस्ट। किसने टेस्ट की थी वैसे? किसने टेस्ट की ये थी? तो मेरे ऊपर ही नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं मैं मैडम सही बात कर रही हैं। मैडम आपने सरदार तारिक मसूद साहब की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मतलब एप्लीकेशन आपने की, आपकी एफर्ट है। इसमें कौन, मुझे हाँ, सिर्फ इतना सही बता बात दें, है। मुझे आप खींच रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सी नहीं, मैंने खींच रहा, नहीं खींच गलत रहा। हरकत की है, कोई गलत बात नहीं की कोई है। गलत बात नहीं। बहादुर है। अगर वो नहीं, मैं और मेरा सवाल और है। सर आप बोल दें, मैं अगर गलत हूं तो नहीं आप मैडम, डिस्कस कर दें, आप बोलें नहीं मैंने मैडम कुछ मेरा नहीं और किया। मेरा सवाल ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं मैडम, उनको अच्छी नहीं बात उठा है। सकती किसी पे। आप- मुझे तो जिस दिन से ये उस दिन से भी इतना खींचा जा रहा है, इतना इसी बीबी ने ये है क्यों, आई कहाँ से है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कर लें भाई। नहीं मेरा सवाल ये था कि आपने मैं दलेर हूं, आप मुझे कोई आप- वो उनको जवाब दे होंगे आपकी दलेरी है। आपके आगे, मैं इसलिए नहीं हूं आपने वैसे क्या बाकी जजेस के भी टैक्स रिटर्न्स निकलवाने की कोशिश की कि आप उससे तकाबला करती हैं कि और किस किस के टैक्स मामला हैं, कि एक ही जज को आपने आप बता दें, निकलवा दो। नहीं, आप तो निकलवा सकते हैं ना, मैं तो नहीं आप निकलवा बता दें, आप अब्दुल बता मलिक साहब ने आप कहती हैं कोई मदद नहीं की आपकी। अमजद मलिक। नहीं अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला मलिक। अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं। कि वो मेरी मदद क्यों करेगा? मैं 25 साल से ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सी, आप फिर टाइम लेके आ जाएं, फिर आपको अपनी सारी पिटीशंस दिखा देते हैं। आप ह्यूमन राइट्स के लिए तो करती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि ये अदारा कौन सा है, फंड नहीं, कौन अभी तो करता इन्हें है, आपको बता कोई दफ्तर भी नहीं है, कोई लेटर फंड हेड- नहीं है, कोई अदारा नहीं तो मते कोई भाई? लेटर हेड भी नहीं है। मते भाई? कहती है, मैं खुद ही सदर बन मैडम मैं गई। ये आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की, आपने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया, एक जज की अकाउंटेबिलिटी आप चाह रही थी। धागे और बखिए उधेड़े जाएंगे सुने और तो मैं सुन। आपको लिख के देती हूँ। मेरे सवाल पास तो कोई पूरा जरूरत सुन, नहीं, कोई जरूरत नहीं सवाल तो करने सुन ले की। पूरा सवाल। नहीं आऊंगी। नहीं मैं और सवाल पूछ, मैं सवाल और पूछ रहा हूँ, सवाल पूरा सुन लेना। अब दोबारा किसके लिए आएंगे? मत असद भाई फैसला एक करूंगी मिनट, किसके असद भाई खिलाफ एक मिनट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उनके लिए आई, उनके एहतसाब के लिए, अच्छी बात है आपने एक एफर्ट की, लेकिन दूसरे एक और जज भी थे, उनके खिलाफ भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, आपने उनके खिलाफ नहीं कंप्लेंट की, नकवी साहब के खिलाफ, इसकी क्या सबके वजह? खिलाफ मैं नहीं करनी है, वैसे और पूछा खड़ा हो मैंने। जाए, मैं नहीं करनी है। अच्छा, जस्टिस मैं घर ना जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के में क्या ऐसी खास बात है जो किसी और में नहीं है? प्यारे पड़े हैं, ठीक है। वैसे आप जैसे फेयर है बहुत। नहीं,
लेकिन वैसे उनके पास केस करते हैं और उन्हें जेल भी करा सकते हैं। वो जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब मुझे अप्रिशिएट करें, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अगर मैंने तो आपको गलती appreciate ही हूँ, किया। जो सच है वो बाहर आ जाएगा। इसमें इतना ज्यादा जो कि आज जी जस्टिस सरदार ताकि उसूल ने अपना जवाब जमा करवाया, आप उससे मुतमिन थे? उन्होंने अपने टैक्स की सारी डिटेल्स भी दी हैं, जरा ये बता रहे हैं सब कुछ, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, आपने वो देखे? आप मुतमिन देखे हैं तो उनसे? है, लेकिन अभी तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, अभी आप देखूंगी। मुतमिन और नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो सारे जमा करवाए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको वकील की जरूरत मैडम यहाँ पे ना वो जो कंप्लेंट थी ना वो डिसमिस कर दी गई है। आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे? अब सुप्रीम ये कोर्ट भी में मैं अभी पिटिशन, नहीं बता सकती, जब भी आऊंगी बता बहुत दूंगी। बड़े वकील हैं मैडम। इससे पहले कभी जिंदगी में आपने कभी आपने जिंदगी में किसी जज के खिलाफ शिकायत दायर की इससे पहले? नहीं, कभी भी नहीं की। ये ख्याल कैसे आया वैसे? बस ख्याल आ गया और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ये और वैसे बताइए ये रवैया जज होता का